The topic of princely state is very easy. The major problem facing India immediately in the wake of independence partition, with the fate of princely state in the light, highlight the integration of princely states in India. So 565 princely states we were having roughly, and all of them they were eyeing that they should become independent. Jinnah, he was giving blank checks to all these princely states that they can choose to become part of Pakistan, and some of them he was even instigating that you should remain independent. And had this been a reality, India would have been completely ruined, and that can be seen even from the examples of few states who were destabilized at that point of time. So that's why this was a very big issue in front of us, and it was the role of Sardar Vallabhbhai Patel. When Sardar Vallabhbhai Patel was given the leadership of the taking care of these princely states, so he took lots of measures. Two specific instruments were used: standstill agreement and the instrument of accession. So these were the you can say specific kinds of paperwork which was required. Along with him, VK Menon became his you can say very important deputy in this case. Both kinds of steps were taken, carrot as well as stick. कैरेट इज़ अबाउट गिविंग द प्रिविलेजेस, प्रीवी पर्स है ना, पोजीशन ऑफ गवर्नर वो उनको दिया था, एम्बेसडर्स बन जाओ, प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारी वो चीज़ें उन्होंने उसके साथ में दी. स्टिक के लिए दे वर टोल्ड दैट टुडे वी आर साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ दीज मैनी प्रोविजंस, लेटर ऑन दे विल नॉट बी अवेलेबल एट ऑल. Then he also threatened the use of direct action, utilize the Prajamandal movements for national integration. तो हर तरीके का मेजर यूज़ किया, and this became eventually successful. And the biggest challenge in front of India, it was solved by Sardar Vallabhbhai Patel along with VK Menon. And this is one of the most important part, okay, for India's struggle. And after 15th of August, we were able to get Junagadh, thereafter the area of Hyderabad, and finally one area which remained disputed, it was the Kashmir. And in Kashmir remained disputed and has been so far. That's why, and the student has also mentioned the second phase, which includes French. From French they were able to get the various territories of your Pondicherry, then the operation against Portuguese in 1961, and finally the integration of Sikkim. So all of this has been the second phase of integration. First phase बहुत ज़्यादा important है, second phase is more like ठीक है उनको भी add कर लिया. And the very important keyword, bloodless revolution. This is the keyword which is used by UPSC in the PYQ. तो बहुत अच्छा keyword है, इसको हमेशा याद रखना. Integration of princely state, it is more like bloodless revolution. They don't have to fight like Bismarck. Wars and battles were not required. Okay, what was required was a right kind of strategy, and this is something which was pursued by him. Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. दिस इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो. ठीक है, एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग.
व्हाट शुड बी दी अप्रोच? तो अप्रोच बहुत सिंपल है। अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ एंड देन ऑन डेली बेसिस विल राइट फ्यू आंसर्स। हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे, एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है। हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर वन डे। जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो। और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस। ठीक है, तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है, फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ चुके हैं एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें। दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग, प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोरियोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोरियोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं, एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया कि रफली 20 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं, तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना है आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे। ठीक है, और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाए, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए। ओके, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself, you will be able to finish off this batch. All right, so all the very best. Thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।